गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th साइंस इंग्लिश मीडियम लेसन नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट है। यह आपके मिनिमम 1 मार्क्स और मैक्सिमम 2 मार्क्स का इस साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, today's topic is total internal reflection, which also known this topic TIR, short form of total internal reflection, TIR. What is TIR? What is TIR? First question is what is TIR? Number 2 question is write the condition for TIR. स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी क्लास है इस क्लास में TIR दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले के जो टॉपिक्स है अपने पास रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, दोनों ही टॉपिक यहां मर्ज होंगे आपके पास। हमने रिफ्लेक्शन में ये कहा था व्हेन ए लाइट इज इंसिडेंट ऑन नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन which are entering same medium. Let we have two separated medium, number 1 and number 2. Number 2 medium is denser medium, suppose water, glass, etc. Distance, it is denser medium. Which refractive index N2, and rarer medium which refractive index N1. Here we have a object placed inside the denser medium, suppose object O. When the light comes from object and passing through from denser to rarer medium, after refraction we get the reflected light are far away from normal. When we draw a normal at the junction, these reflected rays are far away from normal. Here it is incident angle and it is refracted angle. If we increase the incident angle, then we get refracted angle also increase. Students, यहां हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि इंसिडेंट एंगल आई जब आपने किसी रे को, लाइट को डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम में पास आउट किया, तो उस कंडीशन में लाइट रिफ्लेक्टेड रे जो बनेगी आपके पास वो नॉर्मल से दूर हटती जाएगी। जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल को आपने इंक्रीज किया, रिफ्लेक्टेड रे एंगल क्या होता है आपके पास इंक्रीज होता है। रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होता है इंक्रीज होता है। हियर व्हेन वी गेट ए पर्टिकुलर या स्पेशल इंसिडेंट एंगल वेयर the reflected ray become to parallel of medium layer. Here R is equal to 90 degree and I a special angle which denote to critical angle, which denote to IC, which denote to IC. Students, again repeat my topic. When we passing the light denser to rarer medium after after reflection the reflected ray are far away from normal. When we increase the incident angle, the reflected ray angle are also increased. Here we get a particular incident angle where the reflected ray become to 90 degree, or the reflected ray are parallel of the layer. Now we increase incident angle of critical, then
refracted ray enter in same medium. Here incident angle I is more than to critical angle IC. Here R refracted angle. ये refracted ray है आपके पास, refracted ray, normal object and incident ray. IC is the critical angle. IC critical angle. Then this phenomenon, this procedure is known to TIR. Again, repeat my topic. In this TIR, what is TIR? What is TIR? First question is what is TIR? When a light passing through from denser medium to rarer medium, then we get the refracted ray are far away from normal. When we increase the value of incident angle, then refracted angle are also increased. A particular incident angle, we get the refracted ray are parallel of separated medium. Here small r, that means refracted angle become to 90 degree. If we increase, if we have the incident angle is much more to critical angle, then the refracted ray enter in same medium. This phenomenon is known to TIR, total internal reflection. Students, first question of the topic, what is the definition of TIR, which are studied in the video. Now, second question is write any conditions of TIR. या यू भी कह सकते हैं आप write any one condition. There are two conditions of TIR. Number one, the incident ray passing through from denser to rarer. इंसिडेंट रे जो है आपके पास वो डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होनी चाहिए. कभी भी यदि आप रेयर टू डेंजर मीडियम के लिए TIR शो करते हैं, ऐसा नहीं होगा. यहां पॉसिबल नहीं है कि आप रेयर से डेंजर मीडियम में आप लाइट को पास करें और TIR बनेगा, नहीं होगा. ऐसा आपको TIR देखना है तो TIR देखने के लिए आपको लाइट को पास करना पड़ेगा डेंजर से रेयर मीडियम के लिए. नंबर वन कंडीशन. ठीक है स्टूडेंट. नंबर टू कंडीशन, हियर इंसिडेंट एंगल इज मच मोर टू क्रिटिकल एंगल. इंसिडेंट एंगल की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए. देन वी गेट द फिनोमेनन ऑफ TIR. ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम को ढंग से देखें. आपके पास बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक तो डायग्राम आपसे बनवाएगा या डेफिनेशन, और या आपके पास राइट द कंडीशंस या लिमिटेशंस ऑफ TIR. यहाँ जो क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं इन क्वेश्चनों का आप ध्यान रखिए. डायग्राम के लैब अवश्य करें. लैब करना बोले आप. ये इंसिडेंट रे है जिसकी डायरेक्शन आपने डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर बनाई. ये सब आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे. स्टूडेंट्स आपके पास ये भी ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये जितनी भी आपके पास बनती है स्टूडेंट्स, ये इंसिडेंट रे आपके पास है. और आई आपके पास ही आई इंसिडेंट एंगल. ओके स्टूडेंट्स, आईसी क्रिटिकल एंगल. स्टूडेंट्स, क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है आपके पास सोर्स के लिए, मीडियम के लिए. डिफरेंट मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू डिफरेंट होती है. जैसे वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 47.75, आप अप्रोक्सीमेट 48 डिग्री आप कह सकते हैं. डायमंड के लिए 24.41, जिसको अप्रोक्सीमेट 24 डिग्री आप कह सकते हैं. तो स्टूडेंट डिफरेंट जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास होगा या जो भी मैटर आपके पास है उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है. स्टूडेंट्स, TIR से रिलेटेड कुछ एसिडेंट्स अपने पास है. जैसे डायमंड शाइनिंग अपने पास है,
और भी जैसे और भी अपने पास इससे रिलेटेड एग्जांपल्स अपने पास हो सकते हैं जिसको आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, जिसके नोट्स आपको दे दिए गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और देखकर आप इसके नोट्स को अपनी नोटबुक में नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, यदि फिर भी कोई डाउट आपके पास रहता है तो आप इंडिविजुअली मैसेज करके बता सकते हैं और इस वीडियो पे कमेंट अवश्य करिए आप कि आपको क्या प्रॉब्लम रही। ठीक है ना, क्या कोई डाउट है तो डाउट आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।